Hello friends, in today's session we are going to start with the next topic of principles of management, that is contemporary issues and challenges. Okay, as you can see on the board, contemporary issues and challenges. These challenges are there in the management. While doing the work or assigning some delegation of tasks to the responsibilities and authorized person and employees, you may face certain challenges. And these are what temporary issues, these are not permanent, that can be resolved with the analytical and diagnostic skills, as we have seen the skills of managerial roles. Now we are going to ask about and talk about what are the different challenges that the management face. The first one is globalization. As you know, the business is running and expanding globally. The people are opening their franchising and giving multinational companies and expanding their business and branches. Now, suppose there is a company in India and they want to expand their business global level. Now what do? They will go over the different countries and search out for the particular regions and locations. Now they will do the pest analysis. What is that? Pest analysis. Pest analysis, as we have already discussed this is really important क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर बाहर के कंट्रीज में या फिर फॉरेन कंट्रीज में या ग्लोबल लेवल पे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उनको ये पेस्ट एनालिसिस देखना बहुत जरूरी हो जाता है. पेस्ट एनालिसिस मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट. ये चार चीजें अलग कंपनी में कंट्रीज के हिसाब से चेंज हो जाती है. सपोज इन इंडिया देयर इज अ गवर्नमेंट दैट इज वर्किंग ऑन दी डेमोक्रेसी, दैट मीन्स लोकतंत्र के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हर कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होती, तो कंट्री के हिसाब से पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाता है. देन उसकी करेंसी, डिफरेंट लैंग्वेज, देन वहां के गवर्नमेंट, पॉलिटिकल रूल्स, then what we can say, business culture, social life, all this will differ because as we are going global जाने के हिसाब से this all factors comes into the पिक्चर और सिनारियो. बिकॉज अगर आप कोई बिजनेस आपका ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें मेरे बिजनेस के तहत कंफर्टेबल है, फिर मैच हो रही है कि नहीं. आपको अपना बिजनेस उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा. यू हैव टू मॉडिफाई द बिजनेस रूल्स, रेगुलेशन एंड मेक सम नेसेसरी चेंजेस. सो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से द ग्लोबल बिजनेस, द फर्स्ट पॉइंट सेज ग्लोबल बिजनेस. नाउ व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस यू कैन फेस as you want to reach to the global level. See, the communication factor comes because the country in which you are going to the expand your business or the region, it can be local in your nation itself or it can be at international level. So in that case, the communication, the language barrier can come. So that is why I said language. Currency, because in India the currency is rupees. It may happen that you are opening your business into London, UK, America or any other foreign country. So their currency is not equal to our currency. Of course, as it is a different nation, their currency and your currency differs. And the difference between the currencies has to match. You have to convert your currencies and have to do any business over there in the local currency of that particular nation. So currency का difference भी आ गया. देन आपको जो लॉस या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको उस कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वहां पे आता है फॉरेक्स. करेंसी के यहां पे आता है फॉरेक्स. फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज ऑफ करेंसी दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट करेंसी इनटू द अदर कंट्रीज करेंसी. नाउ while doing global business, you also have to make sure the land that you're using for your business, the rent that you have to pay to the government or the owner of the land. Then you have to see the resources. Now आप आपकी कंपनी की फ्रेंचाइजीज दे रहे हो किसी लोकल सेलर को,
या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, या फिर आपकी कंपनी की अलग ब्रांच आप ओपन कर रहे हो दूसरे कंट्री में या फिर किसी और सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे ये सारी चीजें है कि नहीं। सेकेंडली ह्यूमन पावर, क्योंकि आपका पूरा प्लांट जो है कंपनी का दूसरे सिटी में लोकेट होने वाला है या फिर दूसरी कंट्री में लोकेट होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे मेरा जो कंपनी का प्रोडक्शन सिस्टम है या फिर जो मशीनरीज लगने वाले हैं, जो लोग आएंगे काम करने के लिए, आर दे एलिजिबल फॉर माई वर्क और नो। तो यू हैव टू ऑल्सो बी कंसर्न अबाउट द ह्यूमन पावर। तो यहाँ पे जो ह्यूमन पावर का रोल है वो हम पूरा कंसेप्ट थर्ड पॉइंट में कंप्लीट करेंगे, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। सो दिस पॉइंट द ह्यूमन पावर आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद द थर्ड पॉइंट एंड आई विल डिस्कस इन डीप यहाँ पे, ठीक है ना। Government rules and regulations. Government rules and regulations are important because government can take any necessary decisions that can impact organizations goals also. Because example ले लेते हैं, इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, तो ये डिसीजन था वो बहुत ही सडन मोमेंट पे आया और जहां पे हम बहुत सारी चीजें चेंज के हिसाब से लेने लगे, क्योंकि at that time we were not prepared for the change that was happening as a demonetization. उसका impact बहुत हुआ from the lower level people to the upper level, from the very middle class family to the richest family, even the business persons also. सभी को इसका बहुत impact हुआ था, पॉजिटिवली और निगेटिवली। सो गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस है वो बहुत मैटर करते हैं, एक नॉर्मल इंसान से लेके बिजनेसमैन तक। ये हमने एग्जाम्पल इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है और गवर्नमेंट का रोल कैसे इफेक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को भी। नाउ पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, सम पॉलिटिशियंस आर देयर, तो उनके तहत अगर कुछ चेंजेस आते हैं या फिर उनके तहत अगर उन्होंने कुछ भी डिसीजंस लिए या फिर कुछ एक्टिविटीज कर दी, तो उसका भी बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस के ऊपर या फिर एम्प्लॉयज के काम के ऊपर। Nowadays you can see the banks are going on the strikes. Why? Because they are having some certain amount of demands that is to be fulfilled by the unions or bank governments. तो जो भी उनके डिमांड्स है फिर जो भी उनके कुछ इश्यूज है वो उनको फुलफिल करा रहे हैं, इसलिए वो अभी स्ट्राइक्स पे बहुत बार जा रहे हैं। या फिर बस कंडक्टर्स गोज ऑन स्ट्राइक्स और मेनी ऑफ द यूनियंस गोज ऑन स्ट्राइक्स। व्हाई डू दे डू? तो ऐसे इसमें the managers or the government or the employee, I can say the senior authority of the organization have to take an important role in order to solve this. अगर वो जो स्ट्राइक्स के डिमांड्स है अगर ऑर्गेनाइजेशन के बजट में है तो मैनेजर वो फुलफिल कर सकते हैं, अदरवाइज दे हैव टू पे अ लॉकआउट या फिर वो बंद करना पड़ता है, तो उसका जो लॉस है वो भी बेयर करना होता है। तो पॉलिटिशियन पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है कभी कभी। तो दैट हैपन्स बिकॉज lots of different cultural people comes together and work, so different politician parties are also involved and do some different activities, so that impacts. Now business culture, as not a single company is exact same as the other company, many companies are there which have their own culture. Suppose we can say TCS, Tata Consultancy Services, they are having a formal culture, they are having very systematic culture, but at the same time if you take a Google company, they are having very friendly culture, very open culture, people are coming and sitting on the sofa and doing some activities or working on the laptops, but that is not the same scenario that you can see in the TCS or Reliance. So every organization sets their set of culture or set of rules, so you can see the different culture. Culture means not a caste or origin, कल्चर मीन्स कंपनी के अंदर काम करने का जो एनवायरमेंट है, जो तरीका है, उसे हम कल्चर कहेंगे। तो अगर आप इंडिया के कंपनी में काम कर रहे हो और आपको कभी जॉब के तहत या फिर आपकी ट्रांसफर हो गई या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्लोबल लेवल पे काम करने के लिए, तो अगर आप सपोज यूके में आपको जॉब लग गया, ठीक है, आपकी कंपनी आपको यूके भेज रही है, तो वहां की कंपनी का जो भी कल्चर होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा यहाँ के एनवायरमेंट से, इन ऑल द एस्पेक्ट, ह्यूमन वैल्यूज या फिर द वे ऑफ एनवायरमेंट, एम्बियंस, द वे दे टॉक टू ईच अदर। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, वहां पे लोग प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एज इफ यू कंपेयर टू द इंडियन एंड द
लाइक फॉरेन कंट्रीज, वहां पे ह्यूमन प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रायोरिटाइज, एंड द बाकी चीजें नेक्स्ट लेवल प्रायोरिटी में आ जाती है। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में ह्यूमन प्राइवेसी इज कैटेगराइज एज द लोएस्ट वन, ठीक है, बाकी चीजों को ऊपर रखा गया है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे अगर प्राइवेसी को अगर हम डिस्टर्ब भी कर देते हैं, एज अ एम्प्लॉय प्राइवेसी आई एम टॉकिंग अबाउट, एज अ प्रोफेशनल लेवल, तो पनिशमेंट भी मिलती है, पेनाल्टी पे करनी होती है। लेकिन इंडिया में उसके एकदम अपोजिट है। Very few organizations are successful in maintaining privacy of the employees or professionals because people are not having that kind of morals or values or ethics that has to be maintained in the organization. लेकिन exactly opposite और good way बाहर के countries में है। So that is also you have to take care of because आपको जो human power मिलेगी शायद वहीं से मिलेगी, आप यहाँ से employees यहाँ पे सारे के सारे लेके नहीं जा सकते, right? So जो 80 या 90% human power है, you are going to hire from the local लेवल, दैट मीन्स जहां पे आपका प्लांट होगा, राइट? नाउ सोशल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सोशली लाइक वी आर द ह्यूमन, वी आर नॉट मशीन्स, सो वी आर इंटररिलेटेड विद द पीपल, वी आर वेरी सोशल एनिमल। सो सोशली जो भी वैल्यूज है, मॉरल्स है, एथिक्स है, वी हैव टू फॉलो, एंड एज अ मैनेजर यू हैव टू मेक श्योर दैट कि सोशल वैल्यूज को जरा भी डिस्टर्ब ना करते हुए सारी चीजें प्रॉपरली की जाए। सो दिस इज व्हाट ग्लोबल लेवल पे इश्यूज या चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं। यही चैलेंजेस हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में भी थोड़े बहुत देख लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये चीजें ग्लोबल लेवल पे एज अ ह्यूमन, जैसे कि हम लोग बात करें सोशल लाइफ, तो इट इज रिलेटेड टू दैट। नाउ ग्लोबल लेवल पे करेंसी एक्सचेंज आ गया, देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना होता है, मैन पावर है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज है, ठीक है, ये सारी चीजें आप इंडिया से तो वहां पे लेके नहीं जा सकते, राइट? क्योंकि आप अपना प्लांट को एक्सपांड कर रहे हो, आप अपने प्लांट को बढ़ा रहे हो, आप ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज कर रहे हो, सो दैट यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेसमैन प्लांट या फिर कोई ब्रांचेस क्यों खोलेगा? क्योंकि उसका बिजनेस अभी एक जगह पे स्टेबल है, नाउ ही वांट टू एक्सप्लोर हिज बिजनेस, एक्सपांड और ग्रो करना है बिजनेस को, फाइनेंशियली उसको और ऊपर लेके जाना है, एंड प्लस बाकी की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में अपडेट भी रहना है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है टेक्नोलॉजी का। आफ्टर दिस ग्लोबल लेवल पे टेक्नोलॉजी भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि एग्जाम्पल ले लेते हैं मैकडोनल्ड्स, ठीक है, पहले इंडिया में मैकडोनल्ड्स नहीं था, वी वर हैविंग स्ट्रीट फूड और हाइजेनिक फूड, सम रेस्टोरेंट्स वर देयर, but as soon as McDonald's comes, McDonald's customize their product little bit according to the taste of Indians, because in the previously it was not, they were not using a Indian like vegetable oil, पहले वो अलग तरह का ऑयल यूज करते थे जो इंडियंस पसंद नहीं करते। मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ एज पर द कस्टमर टेस्ट ऑफ इंडियन पीपल, लाइक इंडियन पीपल टेस्ट इज डिफरेंट एंड एज कंपेयर टू द यूएस पीपल और द ग्लोबल कंट्री लेवल के जो लोग हैं उनके हिसाब से, तो इंडिया में जो कस्टमर का टेस्ट है उसके हिसाब से दे हैव कस्टमाइज्ड देयर प्रोडक्ट, तो नाउ दे आर यूजिंग वेजिटेबल ऑयल, प्रीवियसली इट वाज लाइक कुछ अलग तरह का ऑयल लोग यूज करते थे, नॉन वेजिटेरियन कुछ तरह का ऑयल वो लोग यूज करते थे, तो अभी बिकॉज उनको यहाँ पे सेल करना है तो दे हैव कस्टमाइज्ड देयर प्रोडक्ट। तो वैसे ही अगर आप कुछ प्रोडक्ट किसी और कंपनी में या फिर किसी और कंट्री में जाके सेल करना चाहते हैं तो आपको उधर के कस्टमर्स का भी टेस्ट देखना पड़ेगा, वहां की टेक्नोलॉजीज को भी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पहले जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में पहले जो टिकट काउंटर पे हम लोग टिकट ले जाते हैं, पहले जो मशीन्स थी जहाँ पे हम लोग अभी यू कैन स्वाइप द कार्ड, यू कैन कीप द कार्ड और वहां से आप टिकट प्रिंट करके ले सकते हैं, तो वो मशीन्स पहले नहीं थी। वो सारी टेक्नोलॉजी हम लोग अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाएंगे तो ये पहले से ही डेवलप्ड है और उससे भी ज्यादा और कुछ बहुत कुछ डेवलप्ड है, तो टेक्नोलॉजी मैटर्स अ लॉट एंड द वे ऑफ सर्विंग द थिंग्स, द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स आल्सो मैटर्स। मैकडोनल्ड्स में अगर आप देखें तो उनका जो एम्बियंस है, फिर उनका जो काम करने का तरीका है, हाइजीन दैट दे मेंटेन और द मशीनरी दैट दे यूजिंग, द टूल्स, इक्विपमेंट्स and the way they serve the food, that keeps them at higher level. So that is what the technology that they have updated and now also they are growing a lot. This is an example that I am giving. Okay, so in that way you have to understood, अगर global level पे जैसे कि ये कंपनी बाहर से आई है तो उन्हें अपना जो तरीका है काम करने का वो यहाँ पे लेके आए हैं और वही तरीका बहुत सारे लोग भी
कॉपी कर रहे हैं, फिर यूज कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। तो वैसे ही अगर आप बाहर के कंट्रीज में या फिर कोई कंट्री यहाँ पे आती है अपने कंपनी या फिर प्लांट लेके, या फिर हम लोग कहीं पे जाते हैं, तो ग्लोबली हमें अडेप्ट करना पड़ता है और चेंज भी होना पड़ता है। सो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से कुछ इश्यूज आते हैं, ग्रोथ भी है और थोड़ी दिक्कतें भी है, तो आपको देख के ग्रो करना होता है। ग्लोबल बिजनेस एंड ग्लोबल इकोनॉमी, ऑफ कोर्स इकोनॉमी पॉइंट वी हैव डिस्कस लाइक पेस्टल एनालिसिस में, तो इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, वहां की जो अर्थशास्त्र व्यवस्था है वो अलग है, यहाँ पे कंप्लीटली अलग है, तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा कि हमें किस हिसाब से लीगल एक्टिविटीज क्या करनी पड़ेगी, लीगल रूल्स हैं, सम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं, तो वो लीगलिटी जो है हमें यहाँ पे इकोनॉमी के तहत चेक करनी होती है। इंपोर्ट कर रहे हो कुछ या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट है, साइनिंग अमाउंट्स है, जो भी आपका टैक्स पे कर रहे हो, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो इकोनॉमी इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से फायदा भी ये हो रहा है कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे मिल रहे हैं, एट द सेम टाइम उन्हें वो लेवल पे कोप अप करने के लिए थोड़ा टाइम भी देना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई कंपनी अगर मुनाफा नहीं है, फिर प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो दे शट डाउन, और उससे फिर क्या हो जाता है, रिसेशन आ जाता है। नाउ डेज वी आर ऑल्सो फेसिंग लॉट्स ऑफ रिसेशन, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट, people are losing their good jobs, and because of that their financial commitment getting disturbed or the living is getting disturbed। तो ये भी एक चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन का, कि ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी आपको प्रॉफिट ही दे जाएंगी, कभी कभी हो सकता है कि उसका अगर दे आर नॉट एबल टू बेयर द प्रॉफिट और द लॉस, दे कैन शट डाउन, और डायरेक्टली एमएनसीज का इम्पैक्ट जो वर्कर्स है उनके ऊपर भी आ जाता है। सो ग्लोबलाइजेशन पॉइंट इज क्लियर, आई होप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने बोला जॉब, करेंसी एंड प्रॉफिट, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ई कॉमर्स। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, commerce is commercial things. E-commerce is a process of buying, selling, transferring or exchanging products and services and also information via electronic network. This definition tells you very clear meaning of the e-commerce. क्या कर रहे हैं ये लोग, ये प्रोसेस है, किस बात की प्रोसेस है, बाइंग मतलब खरीदना, बाइंग सेलिंग मतलब बेचना, बाइंग सेलिंग एंड ट्रांसफरिंग और एक्सचेंज करना, किसको, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। कैसे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, वाया, किस तरीके से खरीद सकते बेच सकते हैं, वाया व्हाट, इंफॉर्मेशन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट, वाया द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। कैन यू नेम द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स? द फर्स्ट वन इज very famous, is like you are also maybe buying from that Amazon, then Flipkart, then what else, Snapdeal, or social application. Social applications like Facebook, Twitter or WhatsApp, Instagram. So on that you can see the web pages or the commercial pages of a businesses. कभी कभी आप YouTube पे कुछ वीडियो देख रहे हो, सपोज कोई एंटरटेनिंग वीडियो, सॉन्ग या फिर कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो देख रहे हो, तो उस टाइम पे इन बिटवीन देयर इज अ एड दैट कम्स, तो एड शोज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनी। कभी कभी वहां पे भी बताया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट यूज करिए, एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, यू स्किप द एड एंड go for your video, right? So what they're doing, they're actually selling their product via digital medium. तो YouTube एक डिजिटल मीडियम हो गया, ताकि लोगों के पास वो पहुंच रहा है, बता रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हम लोग इसे सेल करने वाले, और इसका ये फीचर्स है। सो द सेम वे ये जो कमर्शियल साइड जो मैंने बोला, इवन ये दिस इज वेरी पॉपुलर, मैं भी इससे खरीदती हूँ, तो यहाँ पे लोग बेचते भी है, आई एम जस्ट अ बायर, बट देयर आर द पर्टिकुलर बिजनेसमैन हु हैव invented this kind of websites जहां पे वो लोग actually they are selling it, and it is almost every day 3 crores of the customers buy the quantity or the, I can say, products from these websites every day, every single day. Can you imagine the impact of this e-commerce business that is going on in our life? People are not going to the shops and buying it, people are ordering online. जैसे कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमें ये ज्यादा अच्छी तरह से पता है, बिकॉज वी आर डूइंग इट प्रैक्टिकली, राइट? सो एंड ऑल्सो फेसबुक पे भी हम लोग अगर देखेंगे, तो फेसबुक पे बहुत सारे बिजनेस पेजेस आते हैं
जिसमें बिजनेस रिलेटेड कुछ भी, प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं. तो व्हाट दे आर डूइंग, दैट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म टू सेल देयर प्रोडक्ट. यू गॉट इट? सो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम पे भी. सो यू आर वेरी, आई होप यू आर गेटिंग दिस राइट. सो e-commerce is very much popular and spreaded worldwide, and internet is what the main helping backbone of that. World Wide Web, that means www, World Wide Web, and websites are providing a good platform for businessmen to stand and sell their products. Got it? So e-commerce is, and e-commerce की वजह से किसी भी आम इंसान को अपनी चीजों को बेचने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स. एज आई सेड, इन द ग्लोबलाइजेशन the point was human power. Okay, the human power I was about to go and discuss in this point. So human resource, as I just now said कि globalization पे globally अगर हम लोग किसी business को बढ़ा रहे हैं या फिर internally also, ठीक है, it is not only about globalization. अगर आपका प्लांट इंडिया में है, किसी सिटी या विलेज में है, तो इंटरनल लोकल लोगों को भी आपको आपकी कंपनी में काम कर रहे होंगे राइट, या फिर आपके छोटे से सिस्टम में काम कर रहे होंगे. तो ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन पावर इज रियली 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 इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस. अगर आपके पास मशीन है, मनी है, मटेरियल है, दैट मीन्स रॉ मटेरियल है, और आपके पास अगर लोग नहीं काम करने के लिए, तो योर बिजनेस विल नॉट रन. सिंपल फैक्ट. वन पर्सन कैन डू अ लाइक वर्क ऑफ 10 people. इवन दो यू आर हैविंग मशीन, मशीन चलाने के लिए भी आपके पास एक आदमी होना जरूरी है राइट, बटन ऑन एंड ऑफ करने के लिए और उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए. द सेम वे ह्यूमन पावर, एंड ह्यूमन पावर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज HRM. दिस इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मतलब क्या? लोगों को मैनेज करना. अभी हम लोग ने इसके पहले बहुत सारे चीजें देखी है, जैसे कि पहले वाले सेशन में देखा था कि ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल्स देखा था, तो उसके अंदर इंटरपर्सनल एंड ह्यूमन स्किल्स देखे थे. तो उसमें हम लोगों ने बहुत डीपली इसको पढ़ा है. तो आप अगर इसमें कुछ भी आपको थोड़ा डाउट था, वो उसको भी रेफर कर सकते हैं, या फिर मैं एम डिस्कसिंग राइट नाउ. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजिंग पीपल, इंटरैक्टिंग विद पीपल. नाउ ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट जो होता है कंपनी के अंदर, उनका काम क्या होता है? सपोज अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई वैकेंसी है किसी जॉब के रिलेटेड, तो वो काम करने के लिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वालिटीज चाहिए. सपोज आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएट पीपल चाहिए, और उसके अंदर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा चाहिए, उसका टाइपिंग स्पीड इतना 40+ चाहिए, ठीक है, और उसको आई कैन से द एक्सेल और ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है. ये आपका क्राइटेरिया रखा है आपने. तो ये क्राइटेरिया जिस बंदे से मैच होगा उस बंदे को आप जॉब पे रख लेंगे. दैट मीन्स यू आर इंटरव्यूइंग देम, रिक्रूटिंग देम, उसका CV स्क्रीनिंग करना, उसको फिर जॉब पे लेना, जो भी चीजें हैं उसका ट्रेनिंग देना काम के रिलेटेड. So this is what you are as a human resource person, you are managing this. So it can happen that the person you are hiring in your company can also have a different kind of background, culture background अलग होगा, language अलग हो सकते हैं, उसको शायद हिंदी या मराठी नहीं समझ में आ रही होगी, शायद उसको इंग्लिश ही पता है, या फिर हो सकता है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन आपका जॉब है कि आपको वहां पे जाना है जहाँ पे इंग्लिश इज नेसेसरी, ठीक है, तो आपको आपका जो स्किल सेट है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा. इट इज हैपनिंग इन द लाइफ because many people are not going to the foreign because they are not good at English. So आपका इंग्लिश अगर अच्छा है तो ही, भले आप में बहुत सारे स्किल्स है लेकिन आपका मैनेजर वहाँ पे नहीं भेजेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज इज बैरियर, जो कि आपको इतना एक्सपर्टीज नहीं है राइट. सो दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज द बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट्स मेनी पीपल आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटीज. तो वो ना हो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कुछ ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ चीजें जो आपको एज अ पर्सन खुद करनी पड़ती है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सेकेंड थिंग, ये था अपॉर्चुनिटीज और स्किल्स के बारे में एंड रिक्रूटमेंट के बारे में. सेकेंड पॉइंट अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज लोगों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि लोगों का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, डायनेमिक है, दे आर नॉट स्टेबल एट देयर बिहेवियर. सम टाइम पीपल कैन बी गुड टू यू एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे माइट बी, मूड चेंज हो गया, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है उनकी लाइफ में या फिर कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, दे कैन बी वेरी एग्रेसिव एज वेल. So it is not in your hand or it is not in your control, the human's behavior. So according to the, I can say psychology, human psychology, the person should be very much expert or skillful while managing the people. लोगों को मैनेज करना बहुत ही
एक कला है, ये कला जिसको आ रही है वही बंदा ये मैनेज कर सकता है. तो ह्यूमन रिसोर्स पर्सन शुड रिस्पेक्ट पीपल, मैनेजर शुड रिस्पेक्ट पीपल, पीपल शुड फील मोटिवेटेड, उनको एनकरेज करना पड़ता है, एनकरेज करके टीम स्पिरिट को बरकरार रखना पड़ता है. अगर ये काम आप अच्छे से कर सकते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली चलेगा, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मशीन हो, पैसे हो, सब हो, लेकिन अगर अंदर जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर अगर नहीं बन रही है, उनके अंदर अगर डिस्प्यूट्स हैं, तो तुम्हारा प्रोसेस कितना भी भले अच्छा हो, बट अगर उनके अंदर प्रॉब्लम्स है तो कुछ भी करके आप वो प्रोसेस में अगर सॉल्व नहीं करते हो तो इट कैन इम्पैक्ट द रिजल्ट, आउटकम ऑफ द वर्क. सो जो वर्क के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना हो, इसलिए ह्यूमंस को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है. सो दैट इज वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. सो हियर साइकोलॉजिकल टर्म्स ऑल्सो कम्स. उनके इमोशंस को समझो, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, और उनके जो डिमांड्स है कंपनी के बजट में अगर होंगे तो वो भी फुलफिल करने चाहिए. अगर शायद कोई गलती करता है तो उनको पेनल्टी भी करना पड़ेगा आपको. अगर शायद कोई फ्रॉड कर रहा है, someone is lying in the company or doing some misusing the information, तो वो भी चीज आपको देखनी पड़ती है एज ए ह्यूमन रिसोर्स. ना ह्यूमन रिसोर्स का हम सिर्फ पॉजिटिव देखना ही नहीं होता, निगेटिव भी आपको देखना पड़ेगा. और जो बंदा आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उनका पूरा लाइक थॉट प्रोसेस क्या है, स्किल सेट क्या है. अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको मोटिवेशन भी देना जरूरी है. इसको अगर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है तो उसको उससे बात भी करनी जरूरी है. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रियली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट वाज SHRM. SHRM means strategic human resource management. This is what? Strategic. Now, strategy means what? Suppose in company, some organization, if any challenge is happening or some issues you are facing, so you have to apply certain strategy or thought process in order to get rid of the problems. So strategies are also depending on the situations. The situation, like suppose the employees are in the job stress or diversity, then I can say some harassment, fraud cases, legal issues, or obstacles in work. Job stress, diversity, harassment, fraud or legal issues and obstacles. See, job stress. Sometimes employee feels stressful because of the task that he has assigned by the seniors. Sometimes he is not able to do it because of the back of the mind. He might feel that performance pressure, or it can happen that family issue or some emotional stress is there. Because of that also people cannot give the 100%. So as a SHRM, like strategic human resource management, we, or as a manager, you supposed to focus on their problems, talk to them, like let them feel like a family, and help them to solve the emotional issues or stressful issues. The job stress can come out of the work pressure. So this is what job stress. Here strategies are important. Now diversity, as I said, diversity means vividhata. ठीक है. Diversity can be of language, can be of culture, can be of any background, or can be of qualification. It can be anything. So diversity should be respected and should be treated respectfully. They should feel happy and motivated. और उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनके डाइवर्सिटी को साथ लेके काम करना होता है. SHRM का ये मेन काम है. नेक्स्ट पॉइंट इज harassment. Sometime in the organization, many people can take an advantage of the another people. The harassment, like a sexual harassment, people are not feeling respectful or safe in the company, especially the female employees. So this also has to take care of the human resource management. Now, people should feel safe in your company, and then only they can come to your work, right? Come for the work to do in your company. अगर फीमेल एम्प्लॉयज को सेफ नहीं लग रहा है तो दे कैन नॉट कंटिन्यू विथ योर कंपनी, एंड इवन द कंपनी ब्रांड कैन डिक्रीज. So that is why this harassment has to be stopped now, and necessary legal action has to be taken, and that is the main responsibility of the human resource management. Next point is fraud cases. Sometime the authorized person or the main person
can misuse his authority and can misuse the information or confidential data of the company and transfer to the another. These fraud cases has to be handled with care and legal actions to be taken care of, and penalty has to be mentioned over the employee. Then legal issues, sometimes the contracts are fake or the things are not proper, legally चीजें नहीं है, justifiable नहीं है. You have to take care of the confidentiality plus originality of the documents. वो भी आपको चेक करना होता है. कोई लोग फेक डॉक्यूमेंट्स देके भी आपको लाइक फ्रॉड कर सकते हैं. सो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू बी केयरफुल एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन की पॉलिसी आपको बना के रखनी पड़ती है, सो दैट द पॉलिसी कैन maintain the legality of the office rules and the professionalism. Next point is obstacles in the work. People as a human being it's a human nature. Sometimes people feel work pressure, sometimes people feel obstacles in the company or in the work environment or because of the other colleagues also. So obstacles can be anything. It can be at mental level, it can be at physical level, or it can be at a work level. So all of these three has to be taken care of the human resource management. उनको उनके ऊपर ध्यान देना होता है और कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी होती है, सो दैट एम्प्लॉय शुड फील लाइक वेरी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल टू वर्क इन योर एनवायरमेंट. और आपकी कंपनी में आपको वर्कर्स को, लेबर्स को एक अच्छा एनवायरमेंट देना भी जरूरी है. अगर आप एनवायरमेंट अच्छा नहीं दे रहे, लाइक जहाँ पे लाइट्स ना हो, पानी ना हो, या फिर वॉशरूम्स, कैंटीन खाने के लिए, ये चीज़ें भी बहुत नेसेसरी है. अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो वहाँ पे भी कुछ एम्प्लॉयज कंफर्टेबल ना फील करते हुए काम छोड़ जा सकते हैं. ऐसा होता है. So this is happening in the real practical life. So as a human resource management, you should provide them a good working environment, because हमने देखा है कि जो लो लेबर्स होते हैं, जो लो पेइंग लेबर्स होते हैं, जो कंपनी में, कारखाने में काम करते हैं, राइट, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनको ना पीने का पानी साफ सुथरा दिया जाता है, या ना वहाँ पे अच्छे वॉशरूम्स होते हैं, ना हाइजीन मेंटेन होता है, ना ही कैंटीन फैसिलिटीज होती है. कभी कभी वहाँ पे लाइट या फैन भी नहीं होते, तो वो भी आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि एवरी ह्यूमन इज इक्वल एंड दे हैज टू बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली. सो दिस इज ऑल द पॉइंट दैट आई एम कन्वर्टिंग इनटू human resource management task. So I hope this is clear to you, and the remaining points I'm going to continue with the next session. Thank you.